Good morning, children. We have already read noun yesterday, and today we will read pronoun. All of you know the definition of pronoun very well, but today we will discuss the kinds of pronoun also. But as you know that pronoun has so many kinds, so I have discussed only half of kinds in this video, and half of the kinds we will discuss in pronoun part 2. And this is pronoun part 1 you are looking at. Let's start. You know children that a word which is used instead of a noun, मतलब जो noun के बदले use होता है, that is called pronoun. Pronoun means सर्वनाम and noun means संज्ञा. And there are so many kinds of pronoun. In some of the books it is given 8 kinds of pronoun, and some of the books it is given 10 kinds of pronoun. That's why I have written many kinds of pronoun, because we are going to discuss each and every kinds of pronoun. I know that some of you have never read the kinds of pronouns. जनरली हम लोग प्रोनाउंस का काइंड्स नहीं पढ़ते, नाउन का तो काइंड्स पढ़ते हैं हम लोग, 4 काइंड्स ऑफ नाउन, बट प्रोनाउन हम लोग जनरली आई, वी, यू, ही, शी, इट तक ही रखते हैं, उसका हम लोग काइंड्स पढ़ते ही नहीं हैं. दैट्स वाई आई थिंक दैट इट इज नेसेसरी टू रीड ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन आई हैव टेकन एज फर्स्ट. I, we, you, he, she, it, they. Then him, her, it, them. Okay, you can see here that some of the words I have underlined. Why, children? Because all the underlined words are in different kinds of pronoun. That's why I have underlined it. Actually these are also the kind of personal pronoun. तुम उस चीज को कह सकते हो जो तुम्हारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है. ओके, इन फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एंड वी. आई वी से रिलेटेड जो भी है, मी, वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया. बट माइन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट. फिर वी से रिलेटेड अस पर्सनल प्रोनाउन हो गया, लेकिन आवर्स इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट. इन सेकंड पर्सन इट कम्स यू इज पर्सनल प्रोनाउन बट योर्स इज डिफरेंट. ही, शी, इट, दे आर पर्सनल प्रोनाउन बट हिज, हर्स, इट्स, देयर्स आर डिफरेंट. ओके, one thing you must remember that one thing is impersonal pronoun also. अब तुम सोचोगे कि impersonal pronoun तो तुमने कभी नहीं सुना है, तो impersonal pronoun क्या होता है? I will make it clear to you. If it is used in such a way that it seems to stand for no noun, अगर it को इस तरह से यूज किया जाए कि ऐसा लगे कि वो किसी नाउन के बदले नहीं आया है, जस्ट ऐसे ही आया है, then we will call it impersonal pronoun. I have taken some example here. It rains, तुमने बहुत बार सुना होगा ना, it rains, it thunders, it snows. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में it impersonal pronoun है. ओके, it is a dog में impersonal pronoun नहीं है, always remember it. It is a dog में it का जो यूज है वो डॉग के लिए है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो प्रोनाउन आता है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है. लेकिन इम्पर्सनल प्रोनाउन इट के यूज के कारण हो जाता है. इट रेन्स, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है ना, रेन्स इज a verb and it.
तो यहाँ पर किसी नाउन के लिए इट आ नहीं रहा है. That's why it is impersonal pronoun. Okay. Now we will take second one, possessive pronoun. You have seen here many words like mine, ours, yours, his, hers, theirs, its. तो ये possessive pronoun कैसे हुआ? Because it shows possession. Okay, because it shows possession. Possession किसे कहते हैं? अधिकार. ये तुम्हारा अधिकार बताता है. That's why it is called possessive pronoun. This book is mine. Okay, in this sentence mine is possessive pronoun because ये दिखाता है कि ये book मेरा है. Whose book is this? This book is mine. That house is theirs. वो घर उनका है. Okay, but remember one thing, we cannot use my, your, their as pronoun. क्योंकि जब भी हम my का यूज करेंगे हम लोग क्या लिखते हैं? This is my book. तो always remember one thing, that if we are using pronoun also with noun, तो ये pronoun रह ही नहीं जाता है. वो दिखने में pronoun लग रहा है क्योंकि वो I से बना है my, लेकिन वो pronoun नहीं है. एक्चुअली वो possessive adjective है, क्योंकि नाउन के पहले pronoun नहीं लगता है, नाउन के बदले pronoun का यूज होता है. ओके, और एडजेक्टिव हम लोग एडजेक्टिव वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. Now the next one I have taken reflexive pronoun and emphatic pronoun. Why I have written both in this way? क्यों नहीं मैंने अलग अलग सेक्शन में लिखा इसे? क्योंकि इन दोनों में सेम ही वर्ड्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, reflexive pronoun and emphatic pronoun. Reflexive pronoun is another thing and emphatic pronoun is totally different. How? Let's see. When the action done by the subject. तुम जानते हो कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है. You know it very well. जो सेंटेंस में एक्शन कर रहे हैं that is called subject. तो जब वो एक्शन वो रिफ्लेक्ट करता है खुद उसी सब्जेक्ट को, यानी कि रिसीवर भी सब्जेक्ट ही होता है. You know it that we start sentence with subject, then verb comes and then object comes. लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करें और रिसीवर ऑब्जेक्ट के बदले फिर सब्जेक्ट ही हो, then we will call it reflexive pronoun. ये कैसे होगा? Let's take some example for it. I hurt myself. मैंने खुद को चोट पहुंचाया. तो who is the receiver here? I. मैं खुद रिसीवर हूं. I hurt myself. और इसमें सारे वर्ड्स कंपाउंड पर्सनल होते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. Why I am calling compound personal? क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है दो वर्ड मिला हुआ. यहां पर भी तुम देख सकते हो सेल्फ या सेल्व्स ज्वाइन करते हैं हम लोग वर्ड में. तो I hurt myself means myself is here reflexive pronoun because it is a receiver and it belongs to which subject. ठीक है, ये सब्जेक्ट ही है जो खुद को हर्ट कर रहा है. The dog hurt itself. Then again the subject is the receiver और ये dog है इसलिए itself आया है. Always remember one thing, we will write word with self according to the subject only. ये नहीं होगा कि the dog है तो myself लिख दिया, the dog है तो ourselves लिख दिया. No, it will be wrong. हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे. शी हर्ट हरसेल्फ. उसने खुद को चोट पहुंचाया. अब तुम लोगों को लगेगा कि हर्ट क्यों, हर्ट्स क्यों नहीं? द डॉग इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन व्हाई? तो इसलिए क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है. हर्ट इज द सेकेंड मीन्स ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है. द डॉग हर्ट इटसेल्फ मतलब द डॉग ने खुद को चोट पहुंचाया.
शी हर्ट हरसेल्फ मीन्स उसने खुद को चोट पहुंचाया. यहाँ शी हर्ट्स हरसेल्फ होता तो वह खुद को चोट पहुंचाती है हो जाता. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव ऑन. Whereas we will talk about emphatic pronoun now. Whereas if compound personal pronoun, अब तुम सोचोगे कि compound personal pronoun है क्या. तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जब हम लोग pronoun में self word या selves word जोड़ देते हैं तो ऐड करने के बाद वो क्या हो जाता है, बन जाता है तुम्हारा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज करते हैं. जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ. अब तुम यहां देखोगे योर सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों तरह का वर्ड मैंने लिखा हुआ है. तो वाई, क्योंकि तुम जानते हो कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर इज यू एंड प्लूरल नंबर इज ऑल्सो यू. यू का मतलब आप और आप लोग दोनों होता है. तो वेयर इट इज यूज्ड एज सिंगुलर you will use yourself as emphatic pronoun or reflexive pronoun also. But if you is used in the sentence as plural तो तुम लोग yourselves यूज करोगे. अगर you सिंगुलर के रूप में यूज है तो yourself होगा, प्लूरल के रूप में है तो yourselves होगा. itself, ourselves, themselves, himself, etc. तो ये सारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो तुम्हें याद रखने होंगे. बट हाउ वी विल यूज इट टू मेक इट एम्फेटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव तो तुमने समझ लिया, अब एम्फेटिक कैसे हम लोग करेंगे. तो इफ वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब सिर्फ अगर हम लोग सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, जोर डालने के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, देन इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. आई हैव टेकन सम एग्जांपल हियर. आई विल डू इट माई सेल्फ. I will do it is complete sentence. ओके, लेकिन सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, जोर देने के लिए कि मैं खुद इस चीज को करूंगा या करूंगी, तो मैंने माई सेल्फ यहां ऐड किया हुआ है. इट मीन्स इट इज गिविंग जस्ट एन एम्फेसिस टू द सेंटेंस. मीन्स दिस इज यूज्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन हियर. शी herself says so. She says so is enough. But she herself says so means वह खुद इस बात को कहती है. ओके, द नेक्स्ट वन इज इट वॉज टोल्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ. ये टीचर के द्वारा कहा गया था. ठीक है, मतलब टीचर के खुद के द्वारा. हियर हिमसेल्फ इज यूज जस्ट फॉर द एम्फेसिस. ओके, रिमेंबर इट. And now today's assignment, children, because I have told you earlier that some of the pronouns, some of the kinds of pronouns we will read in the other video. Okay, तो आज का assignment क्या है? Tell which pronouns are reflexive and which emphatic in these sentences. तुम्हें ये बताना है. Only 5 sentences are given here. You have to tell in which sentence pronoun is used as reflexive or in which as emphatic. Hope you got it. Make it your own for more practice. Okay, children. Hope you understood this video and like this video. Like it, subscribe my channel, share it with your friends, and don't forget to comment whether you can make this exercise or rest of the exercise which I gave you earlier or will give you in other video. Okay, children, thank you.